Welcome once again to all my dear students in our nuclear physics series. Today we are going to discuss the last point of our chapter, that is the name is nuclear fusions. In that nuclear fusions we have the number of points are clears, like that the energy production in star. Next one, there is an N cycle and NP cycle. Such kinds of such three points we are covered in these topics. So before starting of this lecture, I want to just recall previous lectures. In that previous lecture, we mentioned the process of the nuclear fission. Process of nuclear fission. In that nuclear fissions, we know the power from the nuclear fission is now a reality both on land and sea, and those countries where coal or oil is costly. So means of that, the nuclear fissions, it is the one kind of these providing lots of energy on our earth. So the fission, it is the another side, but the first one side of that, the nothing but the reactions of the fission, that is alternative reaction, that is the alternative reactions as a source of energy, which is completely reverse process of a fission, that is called as the fusions. What I say simply, an alternative to the fission reaction as a source of energy is its reverse process is known as the fusion reactions. So in that fusion reactions, the lighter nuclei fused together. What I say, in this point, that is the in a nuclear fusions, the lighter nuclei, which one, that is lighter nuclei fuse together. The lighter nuclei is fused together and produce a heavier nuclei. That means these two, one lighter nuclei plus another lighter nuclei, they are fused together. They are fused together and make a one heavier nuclei. One heavier nuclei. So in the case of that, the masses plays the most important role. Masses plays the most important role. So masses says here, that is the one thing. First of all, I rough this all parts. Okay. So the masses is nothing but of the light nuclei. Whenever we are going to fuse, that means they are adding one kind of the adding. Whenever we are going to fuse such kinds of the masses, that means the sum of the masses of individual nuclei is more than would be the mass of nucleus, which is formed by their fusions. Again, I just repeat here, look at the sentence, what I say here. The sum, like this sentence, please be carefully see, and I just explain of that. What I say, the sum of the masses, which masses, which is fused together, these two lighter nuclei, whenever they are fused, that means the masses of both lighter nuclei is added. That means first one nuclei mass, second one nuclei mass, they will be sum of the both and they make a one kind of the heavier mass.
one kind of the heavier mass, but what is here say these mass is more than would be the mass of the nucleus which is formed by the fusion, and such kinds of fusion process makes a result in a liberation energy, make a result in a liberation energy. So the indications of the fused process, some of the indications are comes in the fused process, says that the how this might be achieved can be obtained by considering the source of energy produced continuously in the star. So it is here energy production in a star is here point, energy production in a star. So what is say? This same process, the fusing process, are happened in the star, including the sun also. Not only the star, here including sun also. What happens in there? The fuse, the number of light elements are fused together and produces some energy. Lots of energy will be produces there, and these emits like a electromagnetic energy, electromagnetic energy. That is the electromagnetic energy, and rate of that energy, is near about 10 to the power 26 joule per second. It is related with the energy production in a star. Now the moves with the another point in astronomical as well as the geological evidence. Astronomical as well as the geological evidence shows that our sun has been radiating lots of energy. This sun, whenever we are saw from a different years and years, this sun emits a energy, and these energy are comes from these fusion methods, with the help of that fusion methods. Now first of all, firstly we just consider the sun is supposed to be consist of pure carbon. In the first, what I say, the sun is consist of the purely carbon. What is the consisted of? Purely carbon element. In the first. So and in that the combinations or the compositions would be supply energy to maintain these radiations. That means simple what I say here. I can speak in Hindi for a better understanding. क्या कहा गया था? सबसे पहले देखो, आज तक तो सूरज की रोशनी चलती आ रही है ड्यू टू दैट द फ्यूजन. जो एस्ट्रोनॉमिकल है, जियोलॉजिकल जो एविडेंस बता रहे हैं वो ऐसे बता रहे हैं हमें कि बिलियन ऑफ ईयर से ये जो सन प्रेजेंट है, ये सन रेडिएट कर रहा है डिफरेंट एनर्जी को. अब ये जो केमिकल रिएक्शन हो रही है इसके अंदर, जो कि सोर्सेस ऑफ दिस एनर्जी को दे रही है, तो उन्होंने क्या कहा था कि सबसे पहले जो सन है हमारा, ये किससे बना हुआ है? प्योरली कार्बन से बना हुआ है. और फिर क्या हो गया, क्या कहा गया कि ये जो प्योरली कार्बन है तो ये क्या कर रहा है? खुद को मेंटेन कर रहा है रेडिएशंस की वजह से, और इसकी वजह से और कुछ साल वो चल भी सकता है. अब उसके बाद अलग अलग क्या कहते हैं उसको, इनोवेशन हुए, अलग अलग चीज़ें पता चली. उसके बाद हमें पता चला कि ये कार्बन है या क्या है. तो वो हियर नॉट इम्पॉर्टेंट दिस पार्ट, इट्स जस्ट अ कंसिडरेबल कि एनर्जी जो रेडिएट हो रही है सूरज से वो 100-150 करोड़ों साल से जैसे कि वैसे प्रोड्यूस हो रही है. ठीक है. अब फिर क्वेश्चन एक हमारे सामने आता है कि ये जो एनर्जी है ये तो बहुत सालों से चलती आ रही है,
तो ये जो एनर्जी, ये क्या स्टेलर एनर्जी है? ये कौन सी एनर्जी है? स्टेलर एनर्जी है, या आज नहीं तो कल ये एनर्जी खत्म हो सकती है क्या? तो जो हेल्महोल्ट्ज है, हेल्महोल्ट्ज ने इन 1853 में हमें ये सजेस्ट किया था कि जो कॉन्ट्रैक्शन होता है सन के अंदर, कॉन्ट्रैक्शन जो टेक्स प्लेस होता है ग्रेविटेशन एनर्जी को रिलेटेड, देखो फिर से बता रहा हूँ, ये थोड़ा सा डिफरेंट है, बाद में हम आ जाएंगे कि हाइड्रोजन है या हीलियम है क्या है, पहले ये समझ लो। इन 1853 में हेल्महोल्ट्ज ने क्या सजेस्ट किया था कि जो कॉन्ट्रैक्शन टेक्स प्लेस हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है कि ग्रेविटेशनल एनर्जी जो कन्वर्ट हो रही है हीट के अंदर, उसकी वजह से ये सन जो है हमें एनर्जी देने की कोशिश कर रहा है। अब ये जो कन्वर्जन है, ये कन्वर्जन किस चीज़ से हो रहा था? एनालॉगस टू प्रोडक्शन दैट कॉन्ट्रैक्शंस वेयर टेकिंग प्लेस, कॉन्ट्रैक्शन जो भी टेक्स प्लेस हो रहा है, और ये जो सप्लाई आ रहा है एनर्जी का जो कि सन की ओर से, ये नियरली 1% ही है। लेकिन ये 1% क्या हो रहा है? ये फिर से फ्यूज होके फिर से बन रहा है। लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं बताया था, ये क्या बता रहे हैं कि ये रेडिएट हो रही है। क्या हो रही है? ये एनर्जी रेडिएट हो रही है, ये एनर्जी एग्जिस्ट हो रही है सन से, और इसके अकॉर्डिंग हमारा जो सन है उस सन की जो एज है वो एज कम होते जा रही है। ओके, द एज ऑफ द सन विच वॉज मच टू शॉर्ट कहा था उन्होंने कि ये जो एनर्जी है वो बहुत शॉर्ट पीरियड में ख़त्म हो सकती है। इन 1853 में उन्होंने ऐसा किया था। बट जो रेडियो एक्टिविटी के अकॉर्डिंग इसको रिसर्च किया गया इन 19th सेंचुरी, कौन सी सेंचुरी में? 19th सेंचुरी में जब इसको इनोवेट किया गया, इसको डिस्कवर किया गया, तो तब कहा गया कि ये जो एनर्जी है, सन की जो एनर्जी है, ये एनर्जी एक प्रकार की एटॉमिक एनर्जी है। कौन सी एनर्जी है? एक प्रकार की ये एटॉमिक एनर्जी है। अब ये एटॉमिक एनर्जी है जो कि सन्स की एनर्जी है, और वो उसके अंदर, सन के एनर्जी के अंदर वो कंट्रीब्यूट कर रही है। फिर क्या हुआ कि उसके बाद इन 1904 में जो J.H. जीन्स है, J.H. जीन्स ने ये सजेस्ट किया कि जो एनर्जी है सन से जो माइट हो रही है वो कैसी है? म्यूचुअल एनिलेशन ऑफ पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्ज की वजह से हो रही है। किसकी वजह से? ये जो एनर्जी है, ये एनर्जी किस लिए आ रही है कि वहाँ पे म्यूचुअल एनिलेशन हो रहा है। किस का? पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज का एक वहाँ पे क्या हो रहा है? एनिलेशंस हो रहा है। फिर अब देखो अलग अलग तरह से निकलते हुए यहाँ पे आ रहे। 1853 में कहा था कि इट इज़ अ वेरी शॉर्ट, और ये जो क्या कह रहे थे कि ग्रेविटेशनल एनर्जी कुछ कन्वर्ट होके हीट एनर्जी से जो कि सन से आ रही है। उसके बाद कहा गया था कि 1% टोटल एनर्जी का आउटपुट हमें मिल रहा है, और उसके बाद ये कैसे है? टू शॉर्ट है। अब उसके बाद एडिंगटन ने 1920 में एक बात सजेस्ट की कि ये जो स्टेलर एनर्जी है जो सन से आ रही है उसको, इट वॉज लिबरेटेड। और उसके बाद फिर जो अब हम लोग पढ़ते हैं कि ये फॉर्मेशन हो रहा है किस वजह से? हीलियम फ्रॉम हाइड्रोजन से। हीलियम कहाँ से फॉर्म हो रहे हैं? हाइड्रोजन से। तो मानो यहाँ पे सन हमारा किस चीज़ से बना हुआ है? इट इज़ मेड अप बाय द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, और उसके रिएक्शन से वहाँ पे हीलियम एटम बन रहे हैं, मतलब वो फ्यूज़ हो रहा है, उसके बाद फीज होता है। तो ये जो रिसीव्ड जो हो गया, ये जो सब निकल गया, ये जो थ्योरी जब आ गई तब इस थ्योरी को सब लोगों ने एक वाइडली सपोर्ट किया, और अकॉर्डिंग टू दैट एक सेटिस्फैक्टरी मैकेनिज्म बना, और फिर बताया गया कि जो फॉर्मेशन ऑफ हीलियम हो रहा है हाइड्रोजन से, इसलिए हो रहा है कि जो लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन है एंड जो हीलियम है वो सन से एग्जिस्ट हो रहे हैं, इसलिए जो हमारा सन है उस सन से इतनी सारी हमें एनर्जी मिल रही है। तो ये फ्यूजन क्या है? फ्यूजन वही है कि दो लाइट न्यूक्लियाई मिलके फ्यूज होते हैं और एक हेवियर न्यूक्लियर बनाते हैं, और जब हेवियर न्यूक्लियर बनता है तो उसके साथ
कुछ एनर्जी प्रोड्यूस करता है तो वो एनर्जी जो कि हम यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ द सन ले रहे हैं, मतलब हमारा यहाँ पे एक पॉइंट ऑटोमेटिकली क्लियर हो रहा है कि एनर्जी प्रोडक्शन इन अ स्टार। ठीक है, अब फिर एक 1929 में एक बात आ गई जो कि एटकिसन और हॉटरमन ने बताई। ये जो जर्मन साइंटिस्ट थे इन्होंने क्या कहा कि ये जो एनर्जी है ये एनर्जी माइट बी लिबरेटेड है, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर है, दे हैव द स्टेलर टेम्परेचर, और उस प्रोसेस को उन्होंने नाम क्या दिया था, थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शन। मतलब उन्होंने क्या बताया कि ये जो थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शन है, ये थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शन की वजह से इतनी हाई टेम्परेचर वाली स्टेलर एनर्जी प्रोड्यूस होती है, और उस एनर्जी का जो टेम्परेचर है वो कैसा है, वेरी वेरी हाई है। सो इट इज़ द सिंपल। अब आगे की ओर देखते हैं कि आगे क्या बताया गया है कि ये जो अलग अलग तरीके से हम लोगों ने अब एग्जाम्पल्स लिए, सन हो गया, बीच में हम लोगों ने स्टार बताया था। तो इसके अंदर एक बात है कि ये जब न्यूक्लियाई है, दो न्यूक्लियाई, कोई भी दो लाइट न्यूक्लियाई जो है, ये जो लाइट न्यूक्लियाई होते हैं, ये लाइट न्यूक्लियाई जब इंटरैक्ट होते हैं, ये क्या होते हैं, इंटरैक्ट होते हैं, दैट मस्ट दे हैव इनफ काइनेटिक एनर्जी। बराबर है, समझो ये एक लाइट न्यूक्लियाई है, ये एक लाइट न्यूक्लियाई, ये दो लाइट न्यूक्लियाई जब एक दूसरे के साथ फ्यूज़ करेंगे तो ऑब्वियसली इसमें भी काइनेटिक एनर्जी होगी, इसमें भी काइनेटिक एनर्जी होगी। तो जब ये काइनेटिक एनर्जी परमिट होती है, देन दे ओवरकम द इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन बैरियर। अब ये यहाँ से ज़ोर से आ रहा है, बराबर है, ये ऐसा ज़ोर से आया, यहाँ पे गया, बराबर है, या इधर वाला आके अगर एक सेकंड, हाँ, ये वाला इधर से आ रहा है, वो वाला उधर से आ रहा है, तो ऑब्वियसली दोनों को जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स रिपल्शन होगा, और ये जो रिपल्शन होगा इट टेंड्स टू कीप देम अपार्ट। दैट मीन्स हियर it can be shown from our calculation energy required to make the nuclear reaction occurs due to detectable rate about the 0.1 MeV। तो सिंपल सी बात है बच्चों, जब ये दोनों फ्यूज होंगे दैट मीन्स दे बोथ हैव द एनर्जी, और जब ये एनर्जी के साथ काइनेटिक एनर्जी से के साथ एक दूसरे में फ्यूज होंगे तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ चार्ज उसका रिपल्स करेगा, तो उसको हम लोगों ने यहाँ पे क्या नाम दिया, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन, ये नाम हम लोगों ने यहाँ पे दे दिया उसको। तो अब ये जो न्यूक्लियर रिएक्शंस हो गई, अब इसका जो रेट है, डिटेक्टेबल रेट जो निकल के आ रहा है, वो रेट कितना है, ये इतना है, ये इतना रेट है 0.1 MeV, इतना इसका रेट है, जो कि लोवेस्ट एटॉमिक नंबर के न्यूक्लियाई के बराबर आता है। अब जो लार्जर एनर्जी है जो कि हायर एटॉमिक के वास्ते नीडेड होती है, वो इसके अकॉर्डिंग बन जाती है। ठीक है, अब ये जो एनर्जी है जो कि सफिशिएंट एक दूसरे के साथ जब वो लोग फ्यूज़ हो गए, फ्यूज़ होने के बाद जो सफिशिएंट एनर्जी इंक्रीज़ हो गई, उसको जब एनर्जी इंक्रीज़ होगी दैट मीन्स दे हाउ इंक्रीज द टेम्परेचर, तो ऑब्वियसली इंक्रीज क्या हो गया, इसका टेम्परेचर हो गया, और वो जो टेम्परेचर है, these temperature are considerable higher than existing in a star, उस स्टार्स के एग्जिस्टिंग्स होता है, मतलब इस स्टार की टेम्परेचर मानो कि कुछ 30 डिग्री है, मानो समझो इतना कम नहीं होता है, ज़्यादा होता है, मानो कि 30 डिग्री है, अगर ये प्रोसेस होता है तो ऑब्वियसली इसका जो बेसिक वाला जो टेम्परेचर है उस बेसिक टेम्परेचर्स के से भी ज़्यादा टेम्परेचर वहाँ पे प्रोड्यूस होगा, दैट मीन्स दे ऑल्सो इमिट्स दी एनर्जी। तो यही स्टार में वही होता है, लाइक सन में भी वही होता है, जो सेंट्रल टेम्परेचर होता है, सेंट्रल टेम्परेचर जो सन का होता है वो होता है 50 × 10⁻⁶ डिग्री केल्विन। ये तो बहुत हो गया, बहुत हो गया ये। अब ये कब बनता है, इट इज़
is in the fusion reaction takes place the infinite rate of, sorry infinite not, that is called as the finite कहेंगे उसको, infinite नहीं कह सकते हम लोग, finite rate to release the energy, बहुत ज़्यादा इनफ एनर्जी उसमें से एग्जिट होगी, और जब वो एनर्जी एग्जिट होगी तो उसका रूपांतर किस चीज़ में होगा, हीट में होगा। और सिमिलरली यही प्रोसेस किस में होती है, स्टार में होती है। जो स्टार होता है उसी स्टार के अंदर, सन क्या है हमारा, सन भी एक स्टार है। तो ये यहाँ पे आपके दो पॉइंट्स क्लियर होते हैं, एक तो फ्यूजन और जो दूसरा है वो होता है एनर्जी प्रोडक्शन इन अ स्टार। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब यहाँ पे आगे जब हम लोग देखेंगे तो सिंपल सी एक बात हमें समझ में आनी चाहिए कि ओके तो सिंपल सी एक बात क्या है यहाँ पे कि जो HA बीथ है, इन्होंने क्या कहा था, जो कि HA बीथ, मैं नाम बता देता हूँ आपको, लिख लेता हूँ यहाँ पे, HA बीथ जो कि यूनाइटेड स्टेट्स के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने सजेस्ट किया 1939 में एक बात उन्होंने सजेस्ट की कि जो प्रोडक्शन है स्टेलर एनर्जी का, ये थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शन की ओर से होता है। क्या कहा मैंने, जो भी स्टेलर एनर्जी है इज बाय थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शन। ये क्या है, थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शन है, बराबर है। और ये किस वजह से हो रही है, हीलियम की वजह से हो रही है। 4 न्यूक्लियाई जब सिंथेसाइज्ड होते हैं, जब 4 प्रोटॉन से, कितने से, 4 प्रोटॉन से जब ये सिंथेसाइज होते हैं तो इस काइंड्स की एक थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शन बनती है जो कि हीलियम को प्रोड्यूस करती है। एंड ड्यू टू दैट हीलियम वी नो कि जो फ्यूजन हो रहा है और जिसकी वजह से ये एनर्जी आ रही है, वो प्रोसेस यहाँ पे होगी। अब कुछ सालों पहले की बात है, यहाँ पे एक सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको देना चाहता हूँ। तो जो मेजर पोर्शन है सन का, जो कि सन से आने वाली जो मेजर पोर्शन वाली जो एनर्जी है, उसको कहा गया था कि इट इज नथिंग बट द कार्बन नाइट्रोजन एनर्जी, यानी इसको हम कार्बन नाइट्रोजन साइकिल भी कहेंगे, एनर्जी क्यों कहेंगे इसको, एक मिनट रुक जाओ, इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको एक पॉइंट ही दे देते हैं हम लोग, रुक जाइए। मतलब हमारा और एक पॉइंट यहाँ पे क्लियर हो रहा है, कार्बन नाइट्रोजन साइकिल। ओके, आई एम राइट हियर। अभी जो कार्बन नाइट्रोजन जो साइकिल है, इसके अंदर का जो कार्बन है ना, कार्बन इज कंप्लीटली एक्ट्स एज अ शॉर्ट ऑफ कैटलिस्ट, शॉर्ट ऑफ कैटलिस्ट, जो फैसिलिटेशन होगा, कॉम्बिनेशन जो होगा प्रोटॉन के साथ का, उसके अंदर जब हम लोग, सुनो अब एक सिंपल सी बात सुनो, हम लोग क्या कर रहे हैं, ये यहाँ पे हीलियम को मद्देनज़र रखते हुए पढ़ रहे हैं, क्योंकि हम लोगों का अब तो पता चल गया कि हीलियम है, हाइड्रोजन से हम लोगों ने यहाँ पे हीलियम की प्रोसेस देखी। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि ये जो कार्बन नाइट्रोजन जो साइकिल है, इसके अंदर का जो कार्बन है, दीज कार्बन एक्ट्स एज अ शॉर्ट ऑफ कैटलिस्ट इन facilitating the combination of 4 proton to form a helium nucleus। ये हीलियम न्यूक्लियस बनाने के लिए जो कार्बन है, ये कार्बन क्या कह के एक्ट कर रहा है, एज अ शॉर्ट कैटलिस्ट, एज अ शॉर्ट कैटलिस्ट, एक शॉर्ट कैटलिस्ट बोल के वहाँ पे वो वर्क कर रहा है। अब ये जो प्रोसेस है कार्बन नाइट्रोजन की जो प्रोसेस है, इसके अंदर जो पहला जो प्रोटॉन आएगा, ये इंटरैक्ट होगा आपके कार्बन से। किससे इंटरैक्ट होगा, आपके कार्बन से। कार्बन से इंटरैक्ट होने के बाद अब कार्बन का जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के साथ वो इंटरैक्ट होगा, इंटरैक्ट हो गया मतलब वहाँ से क्या रिलीज हो गई, एक प्रकार की वहाँ से फ्यूजन एनर्जी रिलीज हो गई। देखो क्या ऐड कर रहे हैं हम लोग, एक प्रोटॉन इंटरैक्ट कर रहे हैं हम लोग, किससे इंटरैक्ट कर रहे हैं, सी से। जब इसके साथ इंटरैक्ट करेगा तो क्या बनाएगा वो,
एक प्रकार की फ्यूजन एनर्जी को वो क्या करेगा, यहाँ पे रिलीज करेगा। अब जो फ्यूजन एनर्जी को रिलीज करेगा उसके बाद जो प्रोडक्ट न्यूक्लियस है हमारा, कौन सा प्रोडक्ट न्यूक्लियस है, एक 13N न्यूट्रॉन, अब ये डीके हो जाएगा बहुत शॉर्ट टाइम में। अब ये बहुत शॉर्ट टाइम में अगर ये ये न्यूक्लियाई डीके होता है तो क्या होगा, 12C होगा, 13C होगा। अब ये 13C को जब स्टेबल न्यूक्लियस के फॉर्म में हम लोग देखेंगे तब वो क्या करेगा, और एक बार रिएक्ट करेगा अनादर प्रोटॉन के साथ। इसकी हमने देखे हुई है डायग्राम, डायग्राम भी देखी है इसकी हम लोगों ने, इसको हमने एक्सप्लेन भी किया है। एक रिएक्शन हम लोगों ने ऐसे यहाँ पे लिखी थी, दूसरी यहाँ पे लिखी थी, जो कि कॉम्बिनेशन के साथ यहाँ पे बनी थी। हम लोगों ने C13 भी देखा था, N12 भी देखा था, C6 भी देखा था, सोडियम भी देखा था हम लोगों ने। ये सब के सब हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, तो इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट टू रिपीट वंस अगेन वॉज हियर। तो ये हो गया आपका कार्बन नाइट्रोजन का साइकिल की बात हो गई या आदि हो गई। लेकिन यहाँ पे शॉर्ट टाइम डीके होगा, उसके बाद वो स्टेबल करेगा कार्बन 13 को। तो जब ये मोर एनर्जी यहाँ पे लिबरेट करेगा, मोर एनर्जी जब वो लिबरेट करेगा इन दिस प्रोसेस, तो अब आपका जो कार्बन है वो कार्बन क्या करेगा, खुद को स्टेबल करने की कोशिश करेगा। अब ये खुद को जब स्टेबल करने की कोशिश करेगा तो फिर से वो जो थर्ड प्रोटॉन है हमारा, पहला प्रोटॉन हम लोगों ने कार्बन के साथ रिएक्ट करा, फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा था 13N, फिर स्टेबल न्यूक्लियस देखा जो कि 13C को लेकर आया था। अब फिर एक प्रोटॉन्स मतलब 14N के वास्ते और एक प्रोटॉन के साथ उसको रिएक्ट करना पड़ा। अब जब इसको रिएक्ट करेंगे तो फिर उसका डीके होगा, क्या होगा, उसका डीके होगा, जो कि 15O आएगा, जो कि पॉजिटिव बीटा इमिट करेगा, पॉजिटिव बीटा इमिट करेगा। तो सिंपल वो हो जाएगा 15N। मतलब ये सारा जो झमेला है, ये सारी की सारी जो बात है, ये हमें सिर्फ इसलिए बतानी है कि ये फ्यूजन किस तरह हो रहा है। एक प्रोटॉन आके इसको मिल गया, दूसरा प्रोटॉन आके इसको मिल गया, ये प्रोटॉन आ गया इसके, फिर यहाँ पे बीटा इमिट हो गया, फिर ये ऑक्सीजन फिर किस में गया, नाइट्रोजन में गया। अब ये सारी प्रोसेस दिखाने के लिए एक सिंपल रिएक्शन आपको यहाँ पे मैंने लिख के बताई हुई है, आप देख सकते हो यहाँ पे। एक मिनट, ये वाली रिएक्शन। अब ये रिएक्शन के अंदर देखिए सबसे पहले गौर से, ठीक है। अब इसके अंदर देखिए ये वाला जो पोर्शन है, अब ये C612 ये वाला एक हाइड्रोजन मिल गया, मतलब ये जो 12 था ये 13N हो गया यहाँ पे, बराबर है। अब ये स्टार है, मतलब क्या हो रहा है, ये खुद को स्टेबल करने की कोशिश कर रहा है। जब ये स्टेबल करने की कोशिश करेगा दैट मीन्स इसके साथ देखो दो लाइटर न्यूक्लियर के साथ एक हेवियर न्यूक्लियर बना तो कुछ एनर्जी इमिट हो गई, ये वाली एनर्जी यहाँ पे आ गई, ठीक है। अब सिमिलरली जब ये 13N है, जब इसका डीके हम लोग डीके के रिलेटेड इसको जब हम लोग सोचेंगे तो ये 13C6 एक पॉजिट्रॉन यहाँ पे इमिट हो गया, उसके बाद एक न्यूट्रिनो आया और ये जो एनर्जी ये एनर्जी यहाँ पे प्रोड्यूस हो गई है। अब ये जो सब के सब है ये यही एग्जाम्पल्स है इस चीज़ के, ये सब के सब इसी चीज़ के एग्जाम्पल्स यहाँ पे है। अब ये जो एग्जाम्पल है, ये जो एग्जाम्पल्स है, ये एग्जाम्पल्स क्लियर है यहाँ पे कि एक बार आप लोग कार्बन ले रहे हैं, जिसके बाद आप लोगों ने देखो यहाँ पे C12 6 था, C6 12 था, उसके बाद C13H हो गया। दैट मीन्स फिर से आप लोग एक प्रोटॉन्स के साथ इसको रिएक्ट कर रहे हो, जो कि आपका यहाँ पे जो 13 7N था वो 14 7N हो गया। दैट मीन्स वन ऑफ द प्रोटॉन वॉज एडेड हियर विद द सम अमाउंट ऑफ एनर्जी। और उसके बाद फिर ये जो नाइट्रोजन है, इस नाइट्रोजन के साथ आप लोगों ने फिर से एक बार प्रोटॉन को ऐड किया, जो कि हम लोगों ने बताया था कि थर्ड वन प्रोटॉन्स लाइक दैट। इधर यहाँ पे देखो ये थर्ड वन प्रोटॉन, ये थर्ड वन प्रोटॉन जब हम लोगों ने इसके साथ ऐड किया तो हमें मिल गया 15O मिल गया, ये वाला O मिल गया। जब हम लोगों ने इसका डीके के रिलेटेड सोचा तो उसने क्या कर दिया, खुद से एक पॉजिट्रॉन को निकाल दिया और इस पॉजिट्रॉन के साथ उसने फिर एक जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन को रिलीज करने के बाद यहाँ पे वापस से क्या आ गया, आपका नाइट्रोजन वापस से आ गया। तो ये सिंपल रिएक्शन थी। अब ये जो सिंपल रिएक्शन है ये जस्ट फॉर आवर काइंड ऑफ एग्जांपल्स, ठीक है। अब ये जो चेन है, ये टोटल जो चेन है
ये चेन जब चलते आ रही है तो इसको एक बात समझनी चाहिए हमें कि सॉरी, ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन बहुत ही छोटे टाइम में होती है. इट टेक्स अ वेरी शॉर्ट टाइम. व्हाट आई से, इट टेक्स अ वेरी शॉर्ट टाइम. बहुत ही कम समय में ये जो सब की सब प्रोसेस है, ये प्रोसेस होती है शॉर्ट टाइम में. और ये जब प्रोसेस जो है, ये प्रोसेस जब स्टार्ट होती है, आइदर कार्बन से स्टार्ट हो या नाइट्रोजन से हो, इट इज रिप्रोड्यूस द रिएक्शन. ये प्रोड्यूस को इस रिएक्शन को ये रिप्रोड्यूस करते हैं बार बार. मतलब जो 4 प्रोटॉन थे हमारे साथ, इट विल बी एसोसिएट विद दी 4 इलेक्ट्रॉन्स. अब ये जब 4 प्रोटॉन से 4 इलेक्ट्रॉन्स के साथ एसोसिएट करेंगे, मतलब वो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी है, इस इलेक्ट्रिकली न्यूट्रलिटी को वो मेंटेन करेंगे. व्हाट वेयर इज द, देखो यहाँ पे मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी. अभी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को ये क्या करेंगे, मेंटेन करेंगे. मतलब जो 2 हीलियम न्यूक्लियस की जो हमें रिक्वायरमेंट थी, जो कि रेस्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स के कॉम्बिनेशन के साथ आएगी, उसका रिजल्ट हमें क्या मिलेगा, गामा रेज फॉर्मेशन में उसका हमें रिजल्ट मिलेगा. तो ये था वही हमारा फ्यूजन हो गया, CN साइकिल हो गया, उसके बाद क्या कहते हैं उसको, फ्यूजन हो गया, साइकिल हो गया, एनर्जी प्रोडक्शन इन अ स्टार हो गया. अब सबसे लास्ट वाली जो बात आएगी ना, वो आएगी PP चेन की, जो कि प्रोटॉन प्रोटॉन जो चेन है. अब इसका फ्यूज कैसे होगा, जब 2 प्रोटॉन है, ठीक है, इसको एक मिनट इसको समझा ही लेते हैं. अब जब 2 प्रोटॉन से, समझो ये PP चेन है हमारी. PP चेन यानी क्या है, ये वाला भी प्रोटॉन है और ये वाला भी प्रोटॉन है. ये दोनों के दोनों क्या है, प्रोटॉन है, बराबर. अब ये दोनों के दोनों प्रोटॉन है, इसका मतलब वो फर्स्ट फ्यूज होंगे, एक दूसरे के साथ फ्यूज होंगे. अब जब वो जब वो 2 फ्यूज होंगे एक दूसरे के साथ, जब वो फ्यूज होंगे, मतलब एक प्रोटॉन और दूसरा प्रोटॉन जब फ्यूज होंगे, तब वो क्या बनाएंगे, ड्यूटेरॉन बनाएंगे, एक ड्यूटेरियम बनाएंगे. अब ये ड्यूटेरॉन क्या है, ड्यूटेरियम क्या है, ये नेक्स्ट लेक्चर में हम लोगों को देखना है. अब ये जो कॉम्बिनेशंस होगा अनादर प्रोटॉन के साथ, अब ये तो 2 हो गया, अनादर प्रोटॉन के साथ जब कॉम्बिनेशन होगा तो वो क्या होगा, 3He होगा. क्या होगा, 3He. मतलब जो 2 3He है, दो जो 3He है, जो कि न्यूक्लियर इंटरैक्ट हुए हैं, फिर जब वो और एक प्रोटॉन के साथ इंटरैक्ट होंगे तो वो 4He कहलाएंगे. मतलब जो प्रोटॉन्स है, जब वो प्रोटॉन के साथ इंटरैक्ट होंगे, तब वो जो रिएक्शन आएगी, वो रिएक्शन मतलब जो स्टार के कोर के अंदर से जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, जो हीट प्रोड्यूस हो रही है, जो फॉर्मेशन हो रहा है, मतलब जो हाइड्रोजन बर्निंग की जो प्रोसेस हो रही है, वो हाइड्रोजन बर्निंग की प्रोसेस इसके अकॉर्डिंग होती है. इसका जस्ट मैं आपको एक ये रिएक्शन समझा देता हूँ. देखो, सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया था, PP साइकिल यानी 2 प्रोटॉन थे, एक 1H1 1H1, ये 2 प्रोटॉन हो गए. इसका रूपांतर किस चीज़ में हो गया, हीलियम में हो गया. फिर यहाँ पे एक प्रोसेस हो गई जिसके अंदर H2 हो गया और एक इलेक्ट्रॉन जो है उसके साथ एक न्यूट्रिनो एग्जिस्ट हो गया विद सम अमाउंट ऑफ एनर्जी. फिर इसको लेके हम लोगों ने और एक प्रोटॉन्स के साथ इसको रिएक्ट किया, फिर यहाँ पे ये चीज़ आ गई, बराबर है. तो सिमिलरली देखो सब सेम है, सिर्फ हम लोग हाइड्रोजन को ऐड करते आ रहे. फिर ये वाला कॉम्बिनेशन ले लिया, उसके बराबर ये वाला एक कॉम्बिनेशन लिया, ये वाला एक कॉम्बिनेशन, ये वाला कॉम्बिनेशन ले लिया. फिर क्या बना हमारे पास, बेरियम आ गया, क्या आ गया, बी आ गया. और ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस की वजह से एक हाइड्रोजन बर्निंग प्रोसेस यहाँ पे जो बनेगी, उसके वजह से हम लोगों को जो स्टार में जो एक कलर दिखता है, दैट इज़ क्या कहते हैं उसको हम, रनिंग ब्राउनिश कलर जो दिखता है, जला हुआ जो कलर होता है, लाइक दैट, सम ऑफ द ऑरेंज फ्लेम लाइक दैट जो कलर दिखता है, सिर्फ और ये इसकी वजह से हमें एक लोगों को यहाँ पे दिखता है. तो इट इज़ ऑल अबाउट द फ्यूजन, कंसेप्ट ऑफ फ्यूजन, एनर्जी,
प्रोडक्शन इन स्टार, एनर्जी प्रोडक्शन इन अ स्टार, उसके बाद सी साइकिल, एन साइकिल और पी साइकिल, ये इतने सारे छोटे छोटे पॉइंट इस चीज़ में कवर हुए हैं। यहाँ पे हमारा ये टॉपिक ख़त्म होता है। अब मिलते हैं जब अगला टॉपिक अपना स्टार्ट होगा, तब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे आगे का नया चैप्टर। सो गाइस, थैंक यू सो मच, एंजॉय योर डे।